الفاظ کی برسات ہے، الفاظ ہند یہ دل سے دل کی بات ہے، الفاظ ہند یہ ہر دل کی آواز ہے، الفاظ ہند یہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ تحقیقی و تنقیدی مقالات و مضامین کا مجموعہ ایک نئی بات نکل آئی ہے، قسط وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی قسط میں سماعت فرمائیے لاابالی شاعر میکش ناگپوری۔ کپڑوں کا ہوش نہ خود کا خیال، پراگندہ بال لڑکھڑاتی چال، درمیانہ قد منحنی جسم۔ میکش کا خیال آتے ہی ذہن کے کرتاس پر یہی تصویر ابھر آتی ہے، گویا میکش ناگپوری اس میں بامسمہ تھے۔ میکش رند بلا نوش تھے، ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت اور مست رہتے تھے۔ یار دوست ان کی اس کیفیت سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن ایسی مدہوشی میں بھی ان کا شعور جاگتا رہتا تھا، حافظہ غضب کا پایا تھا۔ ایسے ایسے اشعار زبان سے ادا ہوتے کہ سننے والے حیرت سے میکش کا منہ تکتے۔ میکش ناگپوری کا پورا نام محمد یونس تھا۔ وہ 1 جولائی 1933 کو ناگپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عظمت علی ایک اچھے جراح تھے اور یہی ان کا پیشہ تھا۔ محمد یونس میکش نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ناگپور پاور ہاؤس اور انڈین جیولوجی اینڈ مائننگ میں بالترتیب ملازمت کی، لیکن اپنی لاابالی طبیعت اور مزاج کی وجہ سے بہت جلد انہوں دونوں ملازمتوں کو یکے بعد دیگرے چھوڑ دیا۔ میکش کی شادی بھنڈارہ میں جناب احمد خان پٹھان کی صاحبزادی محترمہ طاہر النساء سے 12 دسمبر 1971 میں ہوئی۔ ان کی اہلیہ بھنڈارہ ضلع پریشد اسکول میں مراٹھی کی ٹیچر تھی۔ ابھی میکش زندگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ شادی کے صرف 5 سال بعد طاہر النساء نے انہیں مفارقت کا داغ دے دیا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنی یادگار چھوڑ گئی۔ میکش جو بے روزگاری سے نبردآزما تھے، شریک حیات کی دائمی جدائی سے ٹوٹ کر رہ گئے اور کہہ اٹھے، میرے رفیق سفر کو کسی نے چھین لیا، نہ جانے کھانی ہے ٹھوکر کہاں کہاں مجھ کو۔ میکش نے طالب علمی سے ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ اسکول میں ان کے استاد حضرت حمید اللہ خان آذر سیماوی ان کی شعری صلاحیتوں کو پرکھا اور نکھارا۔ 1963 میں آذر صاحب پاکستان ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد میکش نے کبھی کسی سے مشورہ سخن نہیں کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے کلام سے ناگپور کے اہل ادب کو متاثر کر رہے تھے۔ حضرت مولانا ناطق بلاوٹوی، نواب غازی اب گوردھا، حافظ انور کامٹیوی، جناب حمید ناگپوری اور حضرت طرفہ قریشی جیسے با کمال شعراء کرام میکش کی شاعرانہ صلاحیتوں کے مداح تھے۔ میکش ذہین، بے باک اور منہ پھٹ تھے۔ وہ سچ کو سچ کہنے سے نہیں چکتے تھے، ریاکاری، مکاری اور فریب کاری سے دور تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ عوام الناس میں بے حد مقبول تھے۔ مشاعرے میں ان کی شرکت مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ وہ محفل میں مرکز نظر ہوتے، اپنی حاضر دماغی اور حاضر جوابی اور غیر معمولی ذہانت سے ہر خاص و عام کو متاثر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مشاعرے میں کلام سنا کر بیٹھے ہی تھے کہ مولانا ناطق بلاوٹوی نے داد کے انداز میں فرمایا، میاں یہ کہاں سے لاتے ہو؟ میکش نے برجستہ جواب دیا، حضرت آپ جہاں سے لاتے ہو۔ اور پھر اپنا ہی ایک شعر برجستہ سنایا، جہاں ان کا ٹھکانہ ہے وہاں میری رسائی ہے، مقید کر نہیں سکتا کوئی پرواز انسان کو۔ میکش
बाद و नौशी में भी शेर कभी गलत नहीं पढ़ते थे। मुझे एक नातिया मुशायरा खूब याद है, जब मैकश ने नशे की हालत में एक नात तरन्नुम से सुनाकर खूब दाद पाई थी। गोया मुशायरा लूट लिया था, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई इस हालत में भी उन्हें टोक देता। उसी मुशायरे में उन्होंने जो नात का मतलब सुनाया था, यादें हबीब आई तो जी भर के रो लिया, यादें हबीब आई तो जी भर के रो लिए, फूलों से के हो लिए कभी कांटों के हो लिए। मुल्क के मेयारी रसायल और जरायद में मैकश का कलाम छपता और कव्वाल हजरात उनकी तहरीर करदा कव्वालियां झूम झूम कर गाते थे। लोगों की फरमाइश पर उन्होंने बेशुमार सेहरे लिखे। मुहर्रम के अय्याम में उनके तहरीर करदा नौहे और मरसिए आज भी जोश व खरोश के साथ पढ़े जाते हैं। रमजान के महीने में कसायद और फिल्मी गीतों की धुन पर हालात हाजरा के हवाले से तंज भरे नगमे अब तक लोगों के जहनों में महफूज हैं। मैकश ने अजीब तबीयत पाई थी। वो नशे में भी शरीफ, मिलनसार, नेक दिल, नेक तबीयत होते। रमजान का महीना शुरू होते ही वो मैखाने की बजाय मस्जिद की राह लेते। सर पर टोपी, गर्दन नीची, खरामा खरामा राह चलते, कम बोलते और रमजान के पूरे रोजे एहतिमाम से रखते। अक्सर तिलावत में मसरूफ नजर आते। गोया रोजों से उनका जाहिर बदल जाता था, मगर शराब उनका बातिन बदलने में कभी कामयाब न हुई। वो हर हाल में शरीफुन नफ्स और पाक बाज थे। बुजुर्गों का अदब करना उनकी फितरत में था। मैंने सुना कि वो अपनी वालिदा का इस कदर ख्याल करते थे कि एक मर्तबा मुंबई के सफर पर गए और काम होने से कब्ल महज ये कहकर लौट आए कि वालिदा की याद आ रही है। एक दिन बिरादर मोहतरम जनाब कमर हयात साहब से सरे राह मुलाकात हुई। नशे में थे। देखते ही कहने लगे, कमर हयात शेर सुनो। कमर की चांदनी शब को, उजाला महर का दिन को, ये दुनिया रोशनी ही रोशनी मालूम होती है। ये दुनिया है, मोहब्बत है इसे बातिल परस्तों से, खुदा लगती यहाँ सबको बुरी मालूम होती है। मोहतरम कमर हयात साहब एक और वाकया बयान करते हैं कि एक रोज मैकश साहब हस्ब आदत अपने पूरे सुरूर में थे। कमर साहब को देखा तो आवाज दी और वही कता पढ़ दिया। कमर साहब ने कहा, मैकश साहब ये शेर सुनो। फिर मैकश एकदम संजीदा हो गए और कहा, सुनाओ। कमर साहब ने कहा, जिंदगी में मकाम पैदा कर, अमले साले से नाम पैदा कर। मैकश ने फौरन कहा, ख्याल अच्छा है मगर बहर से खारिज है, और कहा, इसे यूं कर दीजिए, जिंदगी में मकाम पैदा कर, नेक सीरत से नाम पैदा कर। ये कहकर मैकश अपनी तरंग में आगे बढ़ गए। इस वाक़े से ये बताना मकसूद है कि मैकश शेर के मामले में कितना होश रखते थे। जनाब मैकश ने अदब की तमाम असनाफ पर तब आजमाई की, लेकिन गजल और क़ताआत में उन्हें खास मलका हासिल था। वो वारदात क़ल्ब नज़र को कैफ व सुरूर में डूबकर बयान करते थे। इसलिए उनके कलाम में जिंदगी की ताजगी और हरारत महसूस होती है। उनकी गजलें तगज़्ज़ुल की भरपूर तर्जुमानी करती हैं। ज़बान व बयान में सलासत व रवानी बदरजाए अतम मौजूद है। उनके अशआर ज़बान ज़द खास व आम होने की सलाहियत रखते हैं। अपनी इस खूबी का उन्हें भी एहसास था। कहा है, तरकीब में जिद्दत है तो अल्फाज में शौकत, मैकश तेरा निखरा हुआ अंदाज़े बयां है। मैकश हस्सास, बाशऊर और बाखबर शायर थे। असरी हिस्सियत उनके कलाम की नुमाया खुसूसियत है। वो समाज में अदम मसावात, नाइंसाफी, जुल्म व तशद्दुद देख कर तड़प जाते थे। इस एतबार से हम मैकश को मौजूदा अहद का नौहागर कह सकते हैं। शेर का तवर देखिए, बेसूद कट रहे हैं लाखों हुसैन मैकश, बेसूद कट रहे हैं लाखों हुसैन मैकश, भारत की सरजमी भी मैदान करबला है। इस बेचारगी और मायूसी में भी मैकश पुरुम्मीद नजर आते हैं और हौसले की बात करते हैं। तूफान अगर उठे तो तूफान का रुख बदल दे, हिम्मत न हार साथी, अल्लाह बहुत बड़ा है। क्या बुझती आग मुझसे किसी के मकान की, अपने ही घर की आग बुझाने में रह गया। मैकश को मैकशी में अपनी बर्बादी का एहसास था, मगर मजबूर थे। इसका इजहार उन्होंने कई अशार में
किया है। कहा है, मेरे दिले तबाह का आलम न पूछिए, खाना खराब कर दिया ज़ौक़े शराब ने। बाहर कोई सुकून न घर में करार है, मुझको कहीं का रखा नहीं शराब ने। हमने खुद बढ़ के जलाया है नशेमन अपना, इसमें आए बरक़े तपा तेरा कोई दोष नहीं। कभी मैकश अपनी इस कमजोरी को फितरत का नाम देते थे। इब्तिदाए हयात से मैकश अपनी किस्मत को रो रहा हूं मैं। अजल से अपनी किस्मत में लिखा है ठोकरे खाना, न देखें अहले दानिश मुझे यूं चश्मे परीशां से। बुराई मैं परस्ती की करूं ये हो नहीं सकता, बुराई मैं परस्ती की करूं ये हो नहीं सकता, अजल से पाई है मैकश तबीयत मैंने रिंदाना। मैकश अक्सर अशार में मैकशी, मैकदा और शराब से खूब फायदा उठाते थे। एक जगह कहा है, ये मैकदा है मगर होशमंद आते हैं, ये मैकदा है मगर होशमंद आते हैं, यहाँ समझ के करो जिसकी किसी से बात करो। मैकश के उस्ताद आदर सीमावी अपने होनहार शागिर्द के मुतालिक कहते हैं, बेबाकी मैकश की तबीयत का जौहर है जो उसके शेरों से नुमाया है। हाफिज अनवर कामटूबी कहते हैं, आपके शेरों में जिंदगी पाई जाती है। और तुर्फा कुरैशी मरहूम ने मैकश के कलाम की तारीफ इन अल्फाज में फरमाई, जनाब मैकश अपने माहौल के जाने पहचाने बेबाक और साबगो शायर हैं। उनके शेरों में शाइस्तगी और दर्द आमिर शऊर मिलता है। कैब भोपाली ने मैकश के कलाम पर तबसरा इन अल्फाज में किया है, मैकश के कलाम की ये खुसूसियत मुझे बेहद पसंद है कि वो पेचीदगियों से पाक और साफ और आमद से लबरेज होता है। मशाहिर अदब की इन कीमती आरा के तनाजुर में अब मैकश के ये अशार मुलाहिजा फरमाइए। आब व ताबे आई ना कम हो गई तो क्या हुआ, रफ्ता रफ्ता रंग उड़ जाता है हर तस्वीर का। जो भी करना है आज कर लीजिए, कल ये दुनिया रही रही न रही। अब दर्द मोहब्बत मेरी रग रग में रवां है, सिर्फ एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ है। मैं खूब समझता हूँ दो आलम की हकीकत, इंसान को आराम यहाँ है न वहाँ है। एक रोज रहा था तेरे जलवों की फजा में, आंखों में अभी तक वही रंगीन समा है। गजल के ये अशार देखिए, तुम अपनी निगाह तुम अपनी आंखों में कैफे शराब भर लेना, तुम अपनी आंखों में कैफे शराब भर लेना, हमारे आने से पहले ये काम कर लेना। तुम्हारे जलवों से खेलेगा मेरा ज़ौक़े नजर, नकाब उलटने से पहले जरा संवर लेना। उलझ रही हैं जो कांटे जरा इधर देखो, फिर अपने दामने रंगी में फूल भर लेना। है कार इश्क जहां में मुहाल है मैकश, बहुत ही सोच के ये काम अपने सर लेना। मुतफर्रिक अशार मुलाहिजा कीजिए। मुझे न देख मैं नब्बाज हूँ जमाने का, मुझे न देख मैं नब्बाज हूँ जमाने का, मैं तेरे रुख से तेरी बात को समझता हूँ। ये देखना है किधर टूटते हैं परवाने, ये देखना है किधर टूटते हैं परवाने, मैं दिल जलाता हूँ अपना तू आफताब जला। जख्मों की तादाद न पूछो, छोटा घर में रहने को एक कांटा हूँ, खास निस्बत से फिर भी फूल के साथ। नारे दोज़ख हराम है मुझ पर, है मोहब्बत मुझे रसूल के साथ। जनाब मैकश ने अपनी जिंदगी में ही बादए नौ के नाम से अपना शेरी मजमुआ दे दिया था, मगर अफसोस उनकी जिंदगी में वो जेर तबाद से आरास्ता न हो सका। तहम मैकश के छोटे भाई जलील हनफी साहब के साहिबजादगान जनाब मुख्तार अहमद, जनाब जुल्फ़िकार अहमद और डॉक्टर सरफराज अहमद ने मैकश का मजमुआ कलाम बादए नौ के नाम से जनाब अंसारी असगर जमील के ताउन से शाये करवाया। बादए नौ 160 सफ़हात पर मुश्तमिल है, खूबसूरत सरे वरक से मुज़य्यन है। मजमूए की इब्तिदा में जनाब जलील हनफी ने अपने बड़े भाई मैकश साहब की मुख्तसर सवाने हयात तहरीर की है। इसके बाद मशाइर अदबा और शुरा की राय भी दर्ज है।
मरहूम अब्दुल वहीद नवाब गाजी ने दुआइया मंजूम तकरीस कलम बंद की है। इसके बाद 132 गजलें, 6 कतात और 2 अदद तवील नज़में शामिल हैं। जाहिर है ये महकश नागपुरी की शायरी का इंतखाब है। उनके तहरीर करदा कसायद, बरसिए, नौहे, सहरा और फिल्मी धुन पर लिखी नज़में तलाश करके शाये करने की ज़रूरत है। इससे हमारे माशरे का मंजरनामा महफूज हो जाएगा। महकश नागपुरी 9 जनवरी 1987 बरोज जुमा 8 बजे शब इस दुनियाए फानी से रहलत कर गए। दूसरे दिन मोमिनपुरा कब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में आई। होगा जिस दिन न ये महकश खुशनवा, सूनी हो जाएगी बज़्मे शेरो सुखन। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नई बात निकल आई है, मेरी बातों से कोई बात निकल आई है। चुप थे लफ्ज़ों ने कुछ राज कह दिए, मेरे पहलू में कुछ ज़ात निकल आई है। एक खामोशी ने गजल सुना दी है, एक नई बात निकल आई है। चलते चलते कहीं रुक जाने को जी हुआ, तेरे साए में घर बनाने को जी हुआ। बेवजह सी हंसी तेरी दिल को भा गई, जैसे तन्हाई से मुलाकात निकल आई है। धड़कनों में तेरी सौगात समा दी है, एक नई बात निकल आई है। कसमें ना थी न वादे कोई, फिर भी तू पास लगने लगी है कहीं। तेरे आने से मौसम सा बदल गया, रुत अधूरी थी अब बरसात निकल आई है। आँखों में बसी जो बात छुपा दी थी, वो अब हर बात में झलकाई